کرپشن نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ لوٹ مار کرنے والوں کو حساب دینا ہوگا۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا راولپنڈی میں خطاب، مزید بولے کہ 70 سالہ پرانے مرض کو نیب اکیلے دور نہیں کر سکتا، سب اپنے گریبانوں میں جھانکے۔ ریاست مدینہ خواب کی تعبیر صرف حکومت کی نہیں، ہمیں بھی اپنے ذاتی مفادات قومی مفادات کے تابع رکھنا ہوں گے۔ مریم نواز کی ضمانت منسوخ کی جائے، نیب نے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی۔ موقف اپنایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے احکامات کے برخلاف فیصلہ دیا۔ ضمانت کے کیس میں شواہد پر آبزرویشنز دی گئیں جن سے ٹرائل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ شہباز شریف فیملی کے اثاثے منجمد کرنے کے لیے درخواست، احتساب عدالت لاہور نے نیب سے کل تمام ریکارڈ طلب کر لیا۔ ماڈل ٹاؤن والے گھر اقتدار میں آنے کے بعد خریدے گئے، 96H والا گھر 2006 میں خریدا گیا، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، تفتیشی افسر کا عدالت میں جواب۔ PSL 5 میں کون سا ستارہ جگمگائے گا؟ کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ آج لاہور میں ہوگی۔ 6 فرنچائزز اپنے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب کریں گی۔ 200 سے زائد غیر ملکی کھلاڑی مختلف کیٹیگریز میں نام رجسٹرڈ کرا چکے۔ پاکستان سپر لیگ کا میلہ 20 فروری سے ملکی گراؤنڈز میں سجے گا۔ ٹیسٹ کپتان اظہر علی کی ناکام دورہ آسٹریلیا سے واپسی پر پریس کانفرنس، کہتے ہیں شکست کی کوئی معافی نہیں، دورے میں کافی چیزیں سیکھنے کو ملی جو آئندہ سیریز میں نہیں دہرائیں گے۔ کپتان بابر اعظم، محمد رضوان اور نسیم شاہ کی کارکردگی سے مطمئن۔ سپریم کورٹ کا اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات اور قبضے واگزار کرانے کا حکم، مس کنڈکٹ کے مرتکب افسران کے خلاف کارروائی اور ان سے ریکوری کی جائے، عدالت کی ہدایت۔ 6 ہفتے میں تفصیلی رپورٹ طلب۔ ادھر اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں تبدیلی سے متعلق CDA کا کنسلٹنٹ مقرر کرنے کا فیصلہ، نئے پلان میں ہائی رائز بلڈنگ کو ترجیح دینے کی تجویز۔ وزیر اعظم کا نوجوانوں سے ایک اور وعدہ پورا ہونے کے قریب، نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے منصوبے کا آج سے عملی آغاز۔ وزیر اعظم کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک تقسیم کریں گے۔ پروگرام کے پہلے مرحلے میں 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا بڑا اعلان، پاکستان کے لیے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ 1 ارب ڈالر بجٹ خسارے میں کمی پوری کرنے کے لیے ملیں گے۔ 30 کروڑ ڈالر سے توانائی کے شعبے میں بہتری لائی جائے گی۔ ADB اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسز سے حکومت کی بڑی کمائی، ایک سال میں 206 ارب 28 کروڑ روپے عوام کی جیبوں سے نکلوائے گئے۔ پیٹرول پر فی لیٹر 35 روپے، ڈیزل پر 45 روپے 75 پیسے اور مٹی کے تیل پر 20 روپے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کا قومی اسمبلی میں تحریری جواب۔ پنجاب کے بعد اب سندھ کی باری، وفاقی حکومت بڑے انتظامی اور سیاسی فیصلے کرنے کو تیار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا۔ گورنر سندھ سمیت PTI، GDA اور MQM کے رہنما شریک ہوں گے۔ سندھ میں تعینات متعدد افسران کو صوبہ بدر کرنے کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل۔ الیکشن کمیشن کے ممبران پنجاب الطاف ابراہیم قریشی نے قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کا حلف اٹھا لیا۔ 2 ممبران کے ساتھ الیکشن کمیشن غیر فعال، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ادھر چیف الیکشن کمشنر نے اور ممبران کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 9 دسمبر کو طلب کر لیا گیا۔ دونوں جانب سے تجویز کردہ ناموں پر غور ہوگا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا اہم پارٹی اجلاس آج لندن میں ہوگا۔ خواجہ آصف، ایاز صادق، رانا تنویر، پرویز رشید، مریم اورنگزیب برطانیہ میں موجود۔ الیکشن کمیشن میں تقرریوں، آرمی چیف کی مدت اور ان ہاؤس تبدیلی پر مشاورت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز، میں ہوں آپ کے ساتھ فائق محمود۔
और मैं हूँ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमारे साथ सफदर अली भी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि रियासत मदीना के लिए ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे रखना होगा। एहतसाब अकबर जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे, मुल्क की दौलत लूटने वालों को हिसाब देना होगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, नैब ने करप्शन के खिलाफ पहली ईंट रख दी है ताकि इमारत की तामीर की जा सके। वो वक्त जरूर आएगा जब हम लोगों के आगे दामन नहीं फैलाएंगे। मुल्क के साथ वफादारी की कुछ ना कुछ कीमत अदा करना पड़ती है और हम वो कीमत अदा कर रहे हैं। कभी किसी फेस को नहीं, सिर्फ केस को देखेंगे। मुल्क की दौलत जो चंद लोगों ने लूटी, कोशिश है उसे वापस लाया जाए। रियासत मदीना के लिए ज़ाती मुफादात को कौमी मुफादात के ताबे रखना होगा, ऐसा कहना था चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का। मरियम नवाज की मुश्किलात में इजाफा, मरियम नवाज की जमानत चैलेंज हो गई है। नैब ने मरियम नवाज की जमानत मंसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि चौधरी शुगर मिल्स केस में अदालती ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासर होने का खदशा है। मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बहुत से कानूनी सवालात पैदा हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नैब ने लीगी रहनुमा मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। चौधरी शुगर मिल्स केस में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ फैसला दिया। हाई कोर्ट ने जमानत के केस में शवाहिद पर ऑब्जर्वेशंस दी, जिससे ट्रायल मुतासिर होने का खदशा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अदालत से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। कहा कि मरियम नवाज 2008 में चौधरी शुगर मिल्स की 47% शेयर्स के साथ सबसे बड़ी शेयर होल्डर रही। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बहुत से कानूनी सवालात पैदा हो गए हैं। हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि अदालत कानूनी नुकात को मद्देनजर रखते हुए अपनी आंखें नहीं मूंद सकती। मरियम नवाज के अकाउंट से निकलवाए गए 7 करोड़ रुपए के इल्जाम में इस्तगासा के मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं मिलती। इस्तगासा का मुद्दा नहीं था कि ये रकम गैर कानूनी तौर पर आई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से नसीर अब्दुल्ला लोथा का पेश किया गया बयान वजारत खारजा से तस्दीक शुदा नहीं था। जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू कलम बंद करवाए गए नसीर अब्दुल्ला लोथा के बयान के दौरान मुलजिम का मौक़िफ़ नहीं जाना गया। इमरान वसीम, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के असासाजात मुंजमद करने की दरख्वास्त पर समाअत। जज चौधरी अमीर मोहम्मद खान ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया, क्या मॉडल टाउन वाले घर पहले के खरीदे गए हैं? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, मॉडल टाउन वाले घर इक़्तिदार में आने के बाद खरीदे गए। क्या इस हवाले से रिकॉर्ड मौजूद है? अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, 96H वाला घर 2006 में खरीदा गया। इस हवाले से तमाम रिकॉर्ड कल अदालत में पेश किया जाए। अदालत की तफ्तीशी अफसर को हिदायत। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के असासाजात मुंजमद करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जज चौधरी अमीर मोहम्मद खान ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया, क्या मॉडल टाउन वाले घर पहले के खरीदे गए हैं? जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मॉडल टाउन वाले घर इक़्तिदार में आने के बाद खरीदे गए। क्या इस हवाले से रिकॉर्ड मौजूद है? अदालत ने तफ्तीशी अफसर से फिर इस्तफसार किया। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि 96H वाला घर 2006 में खरीदा गया। हाउसिंग स्कीम सियालकोट करप्शन स्कैंडल का मामला। जराये के मुताबिक हेडक्वार्टर से ग्रीन सिग्नल मिलने पर नैब लाहौर ने बाकायदा इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। ख्वाजा आसिफ की अहलिया और बेटे के असासाजात की तफसीलात के लिए मालियाती इदारों को खत लिखने का भी फैसला कर लिया गया है। हाउसिंग स्कीम सियालकोट करप्शन स्कैंडल का मामला। जराये के मुताबिक हेडक्वार्टर से ग्रीन सिग्नल मिलने पर नैब लाहौर ने बाकायदा इंक्वायरी का आगाज कर दिया। ख्वाजा आसिफ की अहलिया और बेटे के असासाजात की तफसीलात के लिए मालियाती इदारों को खत लिखने का भी फैसला कर लिया गया है। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और रहनुमा नून लीग सरदार मेहताब अब्बासी भी नैब रेडार पर आ गए। नैब ने सरदार मेहताब अब्बासी को सवालनामा जारी कर दिया। सवालनामे में नैब ने सरदार मेहताब अब्बासी से पूछा है कि आमदनी के जराए बताए जाएं, बच्चों की तालीमी अखराजात, बैरून मुल्क सफर और अखराजात की तफसील बताई जाए। मजीद जानते हैं हुसैन अहमद से। हुसैन, तफसीलात में क्या क्या चीजें मांगी गई हैं? जी बिल्कुल, नैब जो है वो साबिक गवर्नर के
आमदन से जायद असासा जात की तहकीकात कर रहा है और उस हवाले से नैब KPK की जानिब से जो है साबिक गवर्नर को सवालनामा भेजा गया है, जिसमें उनसे ज़राए आमदन, अखराजात और बच्चों की तालीम के हवाले से सवाल पूछा गया है। और सवाल ये भी पूछा गया है कि क्या आपके जो बेटे शमून अब्बासी हैं उनका कोई दोस्त अहमद नवाज नामी कोई दोस्त है जिसके साथ मिलकर उन्होंने सरमायाकारी की हो। इसके अलावा स्वीडन और स्विट्जरलैंड में भी अगर कोई आपने सरमायाकारी की है तो उसकी जवाब जो है वो जमा कराएं। और साथ साथ ये भी नैब की जानिब से सवाल पूछा गया है कि टेक्सला में जो कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी है उसमें जो सरमायाकारी की गई है उनकी जानिब से उसकी तफसीलात जो है वो जमा कराएं। और साथ साथ जब वो साबिक मुशीर थे हवाबाजी के तो उस वक्त उस हवाले से भी उनसे सवाल पूछा गया है कि कौमी एयरलाइन PIA को रूट देने के बाद के बजाय आपने एयर ब्लू को जो कि निजी एयरलाइन है उसको आपने कोई रूट जो है वो दिया है। ये तमाम तफसीलात जो है वो उन्होंने नैब की जानिब से मांगी गई हैं सरदार मेहताब अब्बासी से और उन्हें कहा है कि वो इस तमाम जवाब जो है वो यहाँ पर नैब में जो है वो जमा कराएं। इसके अलावा उनके खिलाफ रेफरेंस भी एहतसाब अदालत में जारी है जिसमें उन पर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। जी शुक्रिया हुसैन अहमद अपडेट करने के लिए। और मनी लॉन्ड्रिंग के नए इंकशाफात, शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ इल्जामात की बौछार कर दी गई। 18 सवालात पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए। पार्लियामेंट हाउस से मरियम मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुकूमत ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। शहबाज फैमिली पर नए इल्जामात आयद, 18 सवालात पर जवाब भी मांग लिया। अरकान पार्लियामेंट इस बारे में डब्बे पे डब्बा, तारीख पे तारीख, नोटिफिकेशन कर लिया, कैंसिल कर दिया, इस किस्म के काम कर लिए। तो ये जो है ना गीदड़ धपकियाँ, गीदड़ों वाले काम, अब बस जब दिन थोड़े रह जाए तो फिर बेचारे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, तो ये वही काम है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सियासी किसी से कोई डिफरेंसेस हैं तो उनको ये शुरू कर दें, क्योंकि आपने कोई ना रोज़ ऐसे इल्ज़ामात की बुछाड़ से। शरीफ साहब भी अब बाहर हैं, उनको कही जा रहे हैं शहजाद अकबर साहब को मुझे सू करें अगर मैं गलत हूँ, नहीं किया। अब इनकी कोई छूट नहीं है। दोनों भाई आएंगे, दोनों भाई पैसे भी वापस करेंगे और दोनों भाई जेल में भी जाएंगे। इक्वालिटी और जस्टिस की बात होगी, यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे सिर्फ अपोजिशन को बुरा साबित करने की और केसेस में उलझाने की सियासत की जा रही है। एहतसाब है, ये बराए इंतकाम है, ये अक्रॉस द पार्टी होना चाहिए। ये एक ही या दो जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है। एहतसाब होगा और शरीफ खानदान को हिसाब देना होगा। हुकूमती अरकान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया तो अपोजिशन ने तमाम तर इल्ज़ामात को साबित करने का चैलेंज भी दे दिया। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात और कब्जे बागुजार कराने का हुक्म सामने आया है। मिसकंडक्ट के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और उनसे रिकवरी की जाए। अदालत ने यह भी हिदायत की है 6 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट भी तलब की गई। उधर इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में तब्दीली से मुतल्लिक CDA का कंसल्टेंट मुकर्रर करने का फैसला सामने आया है। नए प्लान में हाई राइज बिल्डिंग को तरजीह देने की तजवीज दी गई है। अमीरात और कब्जे कब खत्म होंगे? क्या इस्लामाबाद की जमीन का इस्तेमाल मास्टर प्लान के मुताबिक हो रहा है? निजी शॉपिंग मॉल केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का सवाल। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि शाम को निजी मॉल के तरफ मछली बाजार लगता है। एक्सप्रेस वे को देखकर मायूसी हुई। कश्मीर हाईवे पर डर लगता है ड्राइवर फुटपाथ पर गाड़ी न चढ़ा दे। इस्लामाबाद आधा शहर और आधा देहात बन गया। इमारतें गिर जाती हैं, कोई निजाम है न प्लान। सियासतदानों के कहने पर ऊंची इमारतों की इजाजत दी गई। क्या यहाँ जल्जले नहीं आते? कचरे की सूरत हाल पर जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, क्या कोई कचरा साफ करने वाला नहीं? एयरपोर्ट से आते हुए लाइट्स नहीं। टीवी पर नई इमारतों के इश्तिहारात चल रहे हैं। तरक्याती काम और फंड्स मुंतखब नुमाइंदों का काम है। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि बेहतरीन टाउन प्लानर्स अमेरिका और कनाडा चले गए। लंदन में ट्रांसपोर्ट का निजाम पाकिस्तानी चला रहे हैं। वहाँ काम करने वाले ये कहकर वतन वापस नहीं आते कि जंगले में जाकर काम नहीं कर सकते। ऐसा इनकार मुल्क के लिए तमाचा था। जस्टिस गुलजार का कहना था कि इस्लामाबाद में एक मखसूस रूट पर मेट्रो चल रही है। 1960 से अब तक इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकी। जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची हैदराबाद मोटरवे और चित्राल गिलगित रोड की खराब हालत का भी जिक्र किया। चेयरमैन NHA ने गुज़श्ता समाअत पर पेश न होने पर माजरत कर ली। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आप कानून को समझ नहीं रहे, यही कानून फांसी के फंदे तक ले जाता है। अदालत ने चेयरमैन NHA को अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने और सेक्रेटरी दाखिला को इस्लामाबाद के इंतजामी मसाइल का हल निकालने का हुक्म दे दिया। 6 हफ्ते में मुतल्लिका दस्तावेजात के हमरा तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली।
और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। शहबाज शरीफ की हिदायत पर मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और राना तनवीर समेत मुस्लिम लीगी रहनुमा लंदन पहुंच चुके हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट पर लीगी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू से भी गुरेज किया। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। के मुताबिक लंदन में शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी क़यादत का अहम इजलास होगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन की तकर्री, आर्मी चीफ की मुद्दत के हवाले से कानून साजी और इन हाउस तब्दीली के हवाले से मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास लंदन में शहबाज शरीफ के घर से मुल्हिका होटल में होगा, जबकि लीगी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की तीमारदारी के लिए इवन फील्ड भी जाएंगे। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का लंदन PCCI यूके की सालाना तकरीब से खिताब। कहते हैं हाई कोर्ट के 3 जजेस ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के केसेस सुन रहे हैं, जिनके फैसले अब 6 माह में होंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवाम महंगाई के हवाले से शिकायत कर रही हैं, जो हकीकत है। हुकूमत की अवलीन तरजीह कर्जे खत्म करना और एक्सपोर्ट बढ़ाना है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि PCO के तहत हलफ उठाने वाले जज हमारे हीरो हैं। हाई कोर्ट के 3 जजेस ओवरसीज पाकिस्तानी के केसेस सुन रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के फैसले अब 6 माह में होंगे। इनका मजीद कहना था कि पहले कब्जा माफिया गवर्नर हाउस से ज्यादा ताकतवर था, अब नए पाकिस्तान में कब्जा माफिया को खत्म कर दिया गया है। पिछली हुकूमतों में हमारी एम्बेसी और वज़ारत खारजा सोई हुई थी। भारत झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर रहा था। अब नए पाकिस्तान में हमने भारतीय सोच को शिकस्त देकर GST+ हासिल किया है। न्यू हैम से लेबर पार्टी के उम्मीदवार स्टीफन टिम्स की इंतखाबी मुहिम के हवाले से ईस्ट लंदन में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने ब्रेग्जिट की मुखालफत करते हुए कहा बरतानिया को यूरोपीय यूनियन का ही हिस्सा बना रहना चाहिए। मीटिंग की मजीद तफसीलात बता रहे हैं सलीम साबरी अपनी रिपोर्ट में। 12 दिसंबर 2019 का इलेक्शन बरतानिया की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। लेबर पार्टी ने हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए अपना मंशूर पेश किया। इन ख्यालात का इजहार न्यू हेम से लेबर पार्टी के उम्मीदवार बराए MP स्टीफन टिम्स ने एशियन कम्युनिटी से मुलाकात के दौरान किया है। There's a lot of worry as well about the state of the health service, and we've been hearing this evening about some of the problems that people are facing there. So there's a lot of work to be done, and only a Labour government can bring about the changes that we need. And I'm very hopeful that that will be the view of the people in this community by voting Labour in the general election next week. उन्होंने कहा बरतानवी वज़ीर आज़म चाहते हैं कि वो यूरोपीय यूनियन से निकल जाएं, लेकिन ये बात बरतानवी मईशत के लिए बेहतर नहीं है। इससे बेरोजगारी में इजाफा होगा और लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हाउसिंग का मसला है, दूसरा एजुकेशन का मसला है और हेल्थ का मसला है। और हमने स्टीवन को बुलाया इधर और ये कह रहा है कि हम इंशाल्लाह ये सब प्रॉब्लम्स हम पूरी करेंगे। टीम जो है इस इलाके में जहाँ कहीं इसकी ज़रूरत पड़ी है ये काम के लिए आता है, और जब इसके दफ्तर में गए हैं तो इन लोगों ने काम किया है। ये हमारे इस इलाके के लिहाज से जो लेबर पार्टी है बेहतरीन पार्टी है। यहाँ पे लोकल सियासत में सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आके हमने यहाँ पे रहना है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने यहाँ तालीम हासिल करनी है, आगे जॉब्स करनी है। तो पाकिस्तान की जितनी पार्टी उनको रिस्पेक्टफुली हम रिगार्ड करते हैं, जब वो आते हैं हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं आके। लेकिन लोकल सियासत में अगर हम हिस्सा नहीं लेंगे तो यहाँ की पार्लियामेंट को हमारे मसाइल का कैसे पता चलेगा। एक इंतहाई इम्पोर्टेंट इलेक्शन है जिसमें हिस्ट्री लिखी जाएगी, और हमारे जितने भी लोग स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करते हैं, हम उनको पुरजोर अपील करते हैं पूरे यूके के अंदर कि वो हर सूरत के ऊपर लेबर पार्टी को सपोर्ट करें। स्टीफन टिम्स ने कहा कि लेबर पार्टी ने हमेशा लोगों को बेहतर सहूलतें देने के लिए अपना मंशूर पेश किया। यूनिवर्सल क्रेडिट बेनिफिट से लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन कवानीन में बहुत ज्यादा सख्ती की गई है। उनकी पार्टी सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स की भलाई के लिए भी काम कर रही है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। एडनबरा में मल्टी कल्चरल सोसाइटी और स्कॉट एशियन फॉर इंडिपेंडेंस ने मौजूदा इलेक्शन के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें डंडी और ग्लासगो से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी खालिद परवेज़। मल्टी कल्चरल सोसाइटी एडनबरा की तरफ से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी PTI ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के सदर फ़खर इकबाल चौधरी और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मियाँ इरशाद अहमद थे। इस मौके पर मियाँ इरशाद अहमद ने कहा पाकिस्तानियों को मुकामी सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ग्लासगो में 7 पाकिस्तानी कौंसलर हैं, जबकि एडनबरा में इतनी बड़ी आबादी के बावजूद एक भी पाकिस्तानी मुंतखब नहीं हुआ। दीगर रहनुमाओं का कहना था
कहा कि इस वक्त स्कॉटिश नेशनल पार्टी स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी जमात है जो एशियंस के लिए बेहतर है। इस मौके पर तमाम लोगों ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि जनरल इलेक्शन में स्कॉटिश नेशनल पार्टी की हिमायत की जाएगी। प्रोग्राम के आखिर में मुंतज़मीन ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दुबई में सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से सिंधी म्यूजिक एंड डांस के शानदार प्रोग्राम का इनाकाद किया गया, जिसमें सिंधी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में देखिए। सिंधी कल्चर डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज दुबई में सिंधी कल्चर डे का जश्न मनाया गया, जिसमें सिंधी फनकारों ने समा बांध दिया। लाखों से कचाकच भरा हुआ था। सिंधी जुबान में सूफियाना कलाम ने हाजरीन पर वजद तारी कर दिया। हाजरीन पर वजद तारी किए रखा और वो दीवानावार रक्स करते रहे। और सरकर्दा शख्सियात का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो सिंधी कौम को इस सकाफती दिन पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इनका मजीद कहना था कि आज इनके लिए ईद का दिन है। इस तरह के प्रोग्राम्स की वजह से सिंधी सकाफत को दुनिया भर में फ़रोग मिलता है। यूएई में जितने भी हमारे सिंधी कम्युनिटी है उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने फैमिलीज़ के साथ यहाँ आपने देखा कि शिरकत की है और हमारी जो 5000 साल पुरानी जो है सकाफ़त उसको आज उजागर किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे समझो कि जैसे हमारा ईद का दिन है, जैसे ऐसे मिलते हैं आदमी कि भाई ईद का दिन है, ऐसे समझो हमारा भी सिंधियों का आज ईद का दिन है। आज हमारी टीम सिंध फ्रेंड्स फोरम ने ये इनकाद किया है सिंधी कल्चर डे एंड म्यूज़िकल इवेंट का, बहुत ही शानदार रहा। हमने दुनिया को बताना चाहते हैं कि सिंध का एक रिच कल्चर है। सिंध एक इंडस सिविलाइजेशन से ली गई है और हमारी एक बड़ी पुरानी तारीख है और टोपी और अजरक हमारी पहचान है। पूरी दुनिया में हमें पहचाने जाते हैं अपने कल्चर से। इस साल हमने यहाँ यूएई में एक सबसे बहुत बड़ा इवेंट किया है। उसमें हमारे यूएई के अंदर जो सिंधी रहते हैं उन सब सिंधियों की भी बहुत शुक्रगुजार हैं हम, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम अटेंड किया अपना टाइम निकाल के। और सिंध का कल्चर जो है ये हज़ारों साल पुराना तहजीब है हमारी। कल्चर डे की इस तकरीब में शुरका अपनी फैमिलीज के साथ शरीक हुए, जिन्होंने सिंधी अजरक और टोपी पहन रखी थी। तकरीब के मुंतज़मीन ने मेहमानों को भी सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा दिया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के सदर मलिक शहबाज के एजाज़ में चीन के शहर ओयो में एशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद घुमन। पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के नौ मुंतखब सदर मलिक शहबाज के एजाज़ में चाइना के शहर ईयोर में पाकिस्तानी कम्युनिटी चाइना के सदर अशरफ हुसैन और मुमताज़ बिजनेसमैन मियां हारून की जानब से शानदार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मलिक शहबाज ने कहा कि पाकिस्तानी अशिया चाइना और रूस बरामद करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को ठोस इकदाम करना होंगे और चाइना और रूस में पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए अमली इकदाम की जरूरत है, ताकि पाकिस्तानी तजारत को इन ममालिक में फ़रोग दिया जा सके। दीगर मुकर्रीन ने भी अपने खिताब में पाकिस्तान, चाइना और रूस की बाहमी तजारत के फरोग और दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। तकरीब के इख्तिताम पर मलिक शहबाज और दीगर शख्सियात ने पाकिस्तान, रूस और चाइना दोस्ती का केक काटा। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, रशिया। पाकिस्तान के ट्रक आर्ट को दुनिया भर में पसंदीदगी की नज़र से देखा जाता है। इसी आर्ट के दिलदादा अफराद को पाकिस्तानी आर्ट से रोशनास कराने के लिए पेरिस में ट्रक आर्ट वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों ने भरपूर दिलचस्पी ली। आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान हाउस पेरिस में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की एक खुसूसी वर्कशॉप का इनाकाद किया गया, जिसमें हाथ से पेंट करदा पेचीदा नमूनों और डिजाइनों को मुतारिफ करवाया गया। वर्कशॉप की मेजबानी सफीर पाकिस्तान ब्राय फ्रांस की एहलिया फरा मोइन ने की। शुरका को पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के पस मंजर और इर्तिका के बारे में तफसीली आगाही फराहम की गई। शुरका को बताया गया कि ट्रक आर्ट सिर्फ गाड़ी को सजाने तक महदूद नहीं, बल्कि अब इससे मुख्तलिफ किस्म के मसनूआत मसलन हैंड बैग, जूतों, कपड़ों, सजावट के अशिया, फर्नीचर भी तैयार किया जा रहा है। मुख्तलिफ अशिया जिनमें खुसूसी तौर पर खूबसूरती से सजाई गई कार को नुमाइश के लिए पेश किया गया था शामिल थी। शुरका अपने हाथों से ट्रक आर्ट का काम करके लुत्फानंदोज हुए। आखिर में मेहमानों को पाकिस्तान की रवायती खानों से तवाज़ो भी की गई। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर मोहम्मद हमाद अज़हर की जद्दा में बैनुल-अक़वामी इस्लामी तजारती मालियाती कॉरपोरेशन के सेमिनार में शिरकत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पाकिस्तान इस्लामी तरक्याती बैंक की माली आनत से फ़ायदा उठाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील रियाज।
जद्दा में वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर हमाद अजहर ITFC सेमिनार से खिताब करने वाले पैनल का हिस्सा थे। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि IDB ने अपने क़याम के बाद से पाकिस्तान के लिए $12.43 बिलियन की फाइनेंसिंग की है। सेमिनार में शिरकत के बाद हमाद अजहर ने सफीर पाकिस्तान राजा अली इजाज और कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि IDBM पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फराहम करती है, जिसमें $1.5 अरब सालाना एनर्जी मकासद के लिए दिया जाता है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान का, क्योंकि इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर हम अपना एनर्जी मिक्स हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए, और अभी तकरीबन 1000 से 2000 मेगावाट हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से बना रहे हैं। इसको हम अगले 4-5 साल में 5 से 6000 या 7000 मेगावाट पे आइडियली ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे और मिनिस्टर जो है वो अपने टारगेट का तयन करेंगे। उनका मजीद कहना था कि जो कर्जा शॉर्ट टर्म कमर्शियल बुनियाद पर 1 साल के लिए दिया जाता है, उसको मजीद फाल बनाने के लिए CO इस्लामिक बैंक और CO IDBM से तफसील से गुफ्तगू हुई है। हमारा जो फिस्कल का रिजल्ट आया पहले साल का, वो 13 साल की सबसे कम तरीन सतह पे पहले क्वार्टर का फिस्कल डेफिसिट रहा है। प्राइमरी बजट हमारा 250 अरब से ज़्यादा सरप्लस में गया है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जहां पिछले साल कम हो रहे थे, इस साल उनमें अब बढ़ाव नज़र आ रहा है। तकरीबन $1 से $1.5 अरब के दरमियान जून से और जुलाई से लेकर अब तक उनमें बढ़ाव नजर आया है। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये उम्मीद भी दिलाई कि मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, जिसके बाद मुल्क में इस्लामी बैंकारी निज़ाम बेहतर किया जाएगा। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली कप्तानी का प्रेशर मानने से इनकारी, कहा रन्स किए तो सब अच्छा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त पर भी सफाइयां दी, बरतानिया में अपना कारोबार होने की भी तरदीद की। लाहौर से देखते हैं ये रिपोर्ट। एक्सेप्टेबल, उसके कोई एक्सक्यूजेस नहीं है आई थिंक, बट मैं बिलीव करता हूँ कि हमने प्रिपरेशन अपनी बेस्ट की, पहले जाके वहाँ पे भी और पॉजिटिव इंटेंट से गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सम टाइम रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आते। एक सीरीज़ है और बड़ी ज़बरदस्त एक ओकेजन है हम सब प्लेयर्स के लिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है। 10 साल के बाद टेस्ट मैच हो रहा है, तकरीबन सारे ही प्लेयर्स पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान में खेलेंगे, और श्रीलंका अपनी फुल साइड लेके आ रहा है, तो वो सीरीज़ भी हमें ये देखना है कि हमें बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी उनको हराने के लिए। एक सवाल के जवाब में बोले कि वो इंग्लैंड में सुकूनत इख्तियार नहीं कर रहे। कैमरामैन अहमद रजा के साथ उस्मान बट, 92 न्यूज़ लाहौर। और PSL 5 के लिए तैयारियों का आगाज हो गया। सुपर इवेंट के लिए 6 फ्रेंचाइजीज आज से खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगी। मेगा इवेंट अगले साल 20 फरवरी से 22 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।